Hi and good morning everyone. Today we are going to start with chapter number 1 of 12th class NCERT psychology book, that is variations in psychological attributes. First of all, we are going to understand the meaning of variations in psychological attributes. That means variations many different types. Okay, in psychology, and attributes also reflects our characteristics, our trait, human beings trait it reflects. So in this chapter we are going to understand how the person is different from other person, and what are the personalities that we used to see in every individual, and different type of many things together. So we'll start with first topics, that is individual differences in human functioning. The first question that comes under from this paragraph or this chapter is, what are individual differences? So basically when we talk about individual differences, the word itself is stating that, right? Like individual differences basically that reflects how all other persons are different from each other. जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छी हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ में, बाकी लोग उस चीज़ में परफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, if I say what is your favorite color, then we all say कि red, blue and another many colors, but yes, it totally reflects what? It reflects कि यहाँ पर हम लोग एक जैसे कलर क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं. वाई? बिकॉज एवरीबडीज चॉइस इज़ डिफरेंट, राइट? हमें हर कोई एक पर्सन एक ही जगह पर जाना पसंद नहीं करता. क्यों? क्योंकि सबकी चॉइस डिफरेंट है. सभी एक ही तरह का खाना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि सबकी चॉइस डिफरेंट है. तो ये जो चॉइस वाला जो टर्म है ना, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. तभी हम सभी एक दूसरे से अलग हैं. इन दिस बुक it reflects individual differences refers to distinguish and variations among people's characteristics and behavior patterns. इसीलिए लोगों के ट्रेड्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, और इसीलिए सभी लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. उसको हम सिचुएशनिज्म भी कहते हैं, जो जस्ट इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन के नीचे है. जब एक सिचुएशन सबको मिलती है तो ऑफकोर्स सभी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं उसको लेकर के. सब एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम उसको सिचुएशनिज्म कहते हैं. नाउ द सेकंड टॉपिक कम, दैट इज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन. द फर्स्ट वर्ड इट अंडरलाइंड इन ब्लैक word is assessment. That means, of course, like for example, if you are suffering from fever, we use thermometer to check our temperature level, right? And this is some kind of biological measurement we are going to check. But in case of psychology, we are not doing the same. We are using some different type of assessment techniques, and that might be formal and informal, that I have already marked in a yellow underlined color. So see, formal assessment and informal assessment are both different. Like for example, always when we heard the word formal, that means there might be some pattern, and maybe the format is there to assess the individual. So here there are three terms mainly categorizing here for formal assessment, that is objective, standardized and organized. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो भी फॉर्मल असेसमेंट होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, इन एवरी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो भी आपने अभी तक साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं होता कि इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जो है एक क्वेश्चन दे दिया एंड यू हैव टू राइट द आंसर. नो, देयर इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दैट, and you have a number of options. That options are known as objectives, right? तो ये objectives जो हैं, ऐसे जो टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ और भी अदर टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है. तो ये जो हमारे फॉर्मल असेसमेंट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चनेयर पर डिपेंड करते हैं. देन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक पैटर्न होता है इन सब का, ठीक है, किस तरीके से हमें किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना है. देयर इज अ पैटर्न, नॉर्म्स फॉर दैट,
हर एक टेस्ट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, तो उसको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कहा गया है. एंड ऑर्गेनाइज्ड यानी कि इज वी हैव टू कंडक्ट द टेस्ट इन लेबोरेटरी और एट द फील्ड एरिया. सो फॉर्मल असेसमेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज होंगे और वही टेस्ट हम कहाँ कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ सेकेंड द फॉर्मल वन दैट इज इनफॉर्मल वन दैट इज बेसिकली जो जस्ट इसका अपोजिट है. ठीक है, वहां हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल रहे थे फॉर्मल में. इनफॉर्मल में हमें मिल रहे हैं इंटरप्रिटेटिव टाइप क्वेश्चन. जैसे कि if you are aware of TAT Rorschach test, there are number of cards in that. When you see them, ultimately आपको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है. तो when you are writing something, that is subjective part, and when you are only choosing some options between number of options, then that is objective. Now there is an appropriate definition has been given by NCERT, that is a psychological assessment use systematic testing procedures to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individual. And the next topic is some domains of psychological attributes. Now we have already read about this, that attributes means the characteristics of a person. So now see कैसे जो है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी अलग अलग चीज़ें ही एक इंडिविजुअल बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ हम उसको कहेंगे कि एक अलग पर्सनालिटी है. तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट, कि ये एक दूसरे से अलग है. तो वो किस चीज़ पर मेजर किए जाते हैं, लाइक इन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. द फर्स्ट डेफिनेशन, look students, the first of all the thing is whenever the examiner is going to ask you the question in a 2 number or 3 number, the definitions, you have to write the definition as it was given in NCERT book. that is intelligence एक global capacity है. global capacity है ना, huge, right? your mind has a huge capacity to understand the world, think rationally यानी कि rationally means logically, practically, and use available resources effectively when faced with challenges. Definitely हम उसको intelligent बोलेंगे जो हर परिस्थिति में जिसके पास जो है उसके थ्रू वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले या उस प्रॉब्लम से डील कर ले. That is intelligent person, that is intelligence. Now second is aptitude. Aptitude refers to the, first of all, do not be confused in aptitude and attitude, they both are different terms. The aptitude is basically it underlines your potentials. आप में क्या skills हैं, वो aptitude जो है skills को measure करता है, skill के बारे में बताता है. तो it refers to an individual's underlying potential for acquiring skill. कितना individual की potential है किसी भी skills को acquire करने की. For example, हम बचपन से तो cycling हमें आती नहीं ना, हम पहले वहाँ जो है एटलीस्ट प्रैक्टिस करते हैं रोड पर. काफ़ी टाइम तक जब हम साइकिलिंग करते रहते हैं तो हम में वो स्किल जो है डेवलप्ड हो जाती है. और चाहे हम साइकिलिंग करना छोड़ दें, बट अल्टीमेटली इन फ्यूचर व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो जो स्किल है वो आपको भूलने नहीं देती है. यू आर एबल टू राइड अ बाइसिकल. सो दिस इज एप्टीट्यूड, योर ओन स्किल्स. नाउ द थर्ड डोमेन इज इंटरेस्ट. The third domain is interest. Interest is basically is an individual's preference for engaging in one or more specific activities. Like अब एक एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कह सकते हैं ये इंटरेस्ट है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका फ्लो बने, राइट, और आप जो है काफ़ी समय तक एक जगह पर बैठ सकते हैं उस काम को करने के लिए. दैट इज़ इंटरेस्ट. इसीलिए जब भी हमें करियर के लिए करियर चूजिंग के लिए आप किसी भी करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो दे ऑलवेज चेक योर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ सी द पर्सनालिटी. अब पर्सनालिटी कैसा डिफाइन किया गया है, हाउ अदर पर्सन्स आर डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट, एंड इन बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, then only we can say ki the other persons having a different personality. So here they have defined it as it refers to relatively enduring, that means a permanently behavior change, characteristics of a person that make her or him different from other,
योर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर। हम सब, ये पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया? ये पर्सनालिटी वर्ड यहीं से आया है क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी अलग चॉइसेस, अलग वैल्यूज, बिलीव रखते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग है, सबके स्किल्स यानी कि एप्टीट्यूड अलग है, इसीलिए जो है पर्सनालिटीज बोला गया है, उसको पर्सनालिटी कहा गया है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज वैल्यू, दैट इज एन enduring belief about an ideal model of behavior। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी अ सेट ऑफ वी कैन से कॉग्निटिव सेट ऑफ माइंड, जो कि हम हमारे बचपन से इन्वायरमेंटल लर्निंग से बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन अ हिंदू कल्चर and very open family, we are in very open family and basically जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो हमने सीखा है वहाँ से, वो सब एक जगह हम स्टोर करते हैं इन अ माइंड, और वहीं से जो है आपकी वैल्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। यू बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट इज वैल्यू। सो आर enduring belief about an ideal mode of behavior, that is values. Also they have given the example, a person having a value sets a standard for guiding her or his action in life and also for judging others, right? In value assessment we try to determine the dominant value of a person, political, religion, social and economical. So these are some examples. Now see, ये हमने पढ़ा कि डोमेन्स क्या क्या है, these are the 5 domains. Now see assessment method. अब जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो थर्मोमीटर या जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं टू चेक द बॉडी ऑफ अ पर्सन, इज दैट ऑल राइट और नॉट। सो लाइक दिस वी हैव टू चेक द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। फॉर इन दिस केस वी यूज सम असेसमेंट मेथड्स दैट आर, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसको हम आइटम्स भी कहते हैं, उनको रिसर्च करने के बाद, काफ़ी टाइम एनालिसिस के बाद जो है सेलेक्ट किए जाते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड उसके बेसिस पे दे मेक अ नॉर्म्स बुकलेट एंड रिजल्ट table also and scoring pattern, and after that after done with all the things we get to know the scores or we get to know the result of the person. So these are the psychological tests जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है इनका, जिसमें हमें सिर्फ मार्क करना पड़ता है क्वेश्चंस के आंसर को, हमें कंप्लीट आंसर नहीं लिखना होता है। स्टैंडर्डाइज होते हैं, स्टैंडर्डाइज का मतलब वही कि एक प्रोसेस में लिया जाता है, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाया जाएगा, एक 45 मिनट्स का अगर टेस्ट का टाइम है तो 45 मिनट्स ही दिए जाएंगे, कौन कौन सी मटेरियल्स देने हैं उनको वही मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद कब उनसे जो है कॉपी वापस लेनी है वो भी मेजर किया जाएगा। दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि एप्रोप्रिएट स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे बेस्ड है। इसी की बेसिस पे हमें इंडिविजुअली मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि अगर पूरी कंप्लीट, फॉर एग्जांपल कंप्लीट क्लास है, हम उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहे हैं, हमने सबको बुकलेट दी है, सबको सिमिलर टाइम दिया है, बट फिर भी उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका आईक्यू लेवल हाई निकलेगा, ठीक है, एक अगर हम आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, और कुछ होंगे जिनका एवरेज निकलेगा, कुछ होंगे जिनका बिल्कुल लो निकलेगा। तो क्यों निकलने वाला है ऐसा? क्योंकि सभी लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एंड जितना उनका नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस टेस्ट को किया, एंड उसके बेसिस पे जो है उनको यहाँ हम जो है मेजर कर सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस को। दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट मेथड, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। नाउ सेकंड वन इज इंटरव्यू. So interview, as we all know that interview is basically involves seeking information from a person on a one-to-one basis. एक बार में एक पर्सन से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं, और आपने उस चीज़ को एज अ असेसमेंट के टूल पे यूज़ किया। अब ये बहुत तरीके से हो सकता है इंटरव्यू ना, डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। डायरेक्ट इंटरव्यू में व्हाट विल हैपन, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यानी कि एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ एन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, then definitely you will prepare some questions, and one by one you will ask the questions like this. This is a formal pattern. When we talk about informal or indirective,
then we can say कि ultimately you are roaming somewhere and you ultimately find some cricketer and you just go to them and ask the questions कि जो है आपका यहाँ कैसा आना हुआ, कैसा लग रहा है, ये है वो है. तो these are some different type of question that did not required any preparation. So this is interview in which अब ये interview जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1-to-1 होता है, 1 by ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप बाय 1 भी हो सकता है, ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है, 1-to-1 भी हो सकता है. सो दिस इज इंटरव्यू टू गैदर इंफॉर्मेशन. नाउ द केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है इंडिविजुअल की, जिसमें हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी स्कूलिंग, प्लस उनकी मैरिटल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, एवरीथिंग जो है हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, उनको रीड करना पड़ता है. सो इसीलिए हम इनको इन डेप्थ स्टडी